السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب معلمین، نواز اردو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ تمام کی خواہش کے مطابق نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے پیپر 2 کے سوالات فرسٹ لینگویج اردو اور سیکنڈ لینگویج اردو کو حل کیا جا رہا ہے۔ اس میں سیکنڈ لینگویج اردو کو اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ چند سوالات یہاں کے وہاں، وہاں کے یہاں دہرائے جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں کو حل کریں۔ تو حکومت کی جانب سے شائع کردہ ان سوالات کو حل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہمارے مزید ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے فیس بک گروپ اور ٹیلی گرام گروپ میں جوائن ہو جائے گا، جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلو ہم کیا ہے دیکھیں گے۔ تو ہم اردو میڈیم کے فرسٹ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج کو، اردو میڈیم کے فرسٹ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج کو، فرسٹ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج کو یہاں پر اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ تو چلو کیا ہے دیکھیں، یہاں پر اس انشائیہ کو غور سے پڑھیے اور مطلوبہ سوالات کے جوابات کی نشاندہی کیجیے، دیے گئے متبادل میں سے کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے متبادلات۔ سب سے پہلے اس اقتباس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ امتحان ہے، یہاں پر وقت کی بچت بہت اہم ہے۔ وقت کو جتنا زیادہ اور بہتر استعمال کیا جائے گا، وقت کو جتنا بچایا جائے گا بہت بہتر ہوگا، تاکہ آگے آنے والے مشکل سوالات کو بھی حل کر سکیں، کیونکہ ہمیں پورے کے پورے سوالات کو حل کرنا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، وقت کو بچانا بہت ضروری ہے۔ وقت کو بچانے کے لیے خاص کر کے لینگویجز میں ہم کو دیے جانے والے اس طرح کے اقتباسات کو حل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، ان سوالات کو پڑھ لینا ہے۔ پہلا سوال، امیر خسرو کے والد کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے، امیر خسرو کے والد کا قبیلہ کون سا تھا؟ تیسرا سوال کیا ہے، امیر خسرو نے کم عمر میں یہ فن سیکھا؟ چوتھا سوال، مدح کا معنی کیا ہے؟ پانچواں سوال ہے، مبارک شاہ خلجی کی فرمائش پر یہ مثنوی لکھی گئی ہے، کون سی مثنوی لکھی گئی ہے پوچھی گئی ہے۔ چھٹا سوال، امیر خسرو شاعری کے علاوہ فن موسیقی کے ماہر تھے، مندرجہ بالا جملے میں ماہر کا معنی کیا ہے بتانا ہے۔ ساتواں سوال، صحرا سر ہونا محاورے کا مطلب کیا ہے؟ اور آٹھواں سوال، شکست کا ضد کیا ہے؟ نواں سوال ہے، فن موسیقی میں ماہر استاد کو دیے جانے والا لقب کون سا ہے؟ اس کے بعد نظم ہے۔ تو بہتر ہے ہم ان سوالات کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، ان سوالات کو پڑھنے کے بعد پہلے صرف سوال پڑھیں، آپشن مت پڑھیے گا۔ سوال پڑھنے کے بعد اس اقتباس کو پڑھیں۔ اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، وہ سوالات ذہن میں رکھ کر یہاں پر دیکھو، امیر سیف الدین کی دوسری اولاد تھے، کون ہے؟ امیر خسرو سیف الدین کی دوسری اولاد تھی، اور اسی طرح یہ زہرا قبیلے سے تھا، کون ہے؟ امیر سیف الدین۔ اور یہ کیا ہے، کم عمر میں ہی خطاطی کا فن سیکھا تھا، تیسرا سوال۔ اور اس کے بعد یہاں پر مدح جملے دیکھو، بادشاہ کی مدح میں قصیدے لکھے، مدح لفظ استعمال کیا گیا، مدح میں قصیدے لکھے، یعنی جملے کے حساب سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہاں پر جواب دینا ہے۔
उसके बाद मुबारक शाह खिलजी की फरमाइश पर एक मसनवी नह नह पहर लिखी गई। और उसके बाद यहाँ पर माहिर है, माहिर माहिर लफ्ज है, इसका भी सवाल पूछा गया है। माहिर का मतलब महारत यहाँ पर दिया गया है, देखो माहिर का मतलब महारत। और उसी तरह आला मौसीकी के सितार की ईजाद का सहरा इन्हीं के सर जाता है, सहरा, वहां पर सहरा सर पर होना लफ्ज है, देखिएगा। और इसी तरह मनसब मौसीकी के फन में माहिर उस्ताद को दिया जाने वाला मनसब कौन सा है, नायक, जो यहाँ पर है। इस तरह से चंद सवालात यहाँ पर किए गए। चलो इन एक एक सवालात को हम हल करें, सिर्फ इस तरह से हम अंडरलाइन करें, क्योंकि पूरा पहले पढ़ना, सवाल पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना बेहतर नहीं है। बेहतर है कि पहले सवाल पढ़ें, उसके बाद क्या है हम इन इक्तिबास को पढ़ते पढ़ते उन जवाबात तक पहुंचने की कोशिश करें। तो चलिएगा हम देखेंगे पहले। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अमीर खुसरो के वालिद का नाम क्या था, अमीर सैफुद्दीन। वालिद का नाम क्या था, अमीर सैफुद्दीन। और उसके बाद दूसरा सवाल, अमीर खुसरो के वालिद का कबीला कौन सा था, उनका कबीला था जहरा कबीला। कौन सा, जहरा कबीला। और तीसरा सवाल, अमीर खुसरो ने कम उम्र में ये फन सीखा, अमीर खुसरो ने कम उम्र में खत्ताती का फन सीखा। कौन सा, खत्ताती का फन सीखा। और यहाँ पर मद्दाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मद्दाह में क्या कहा गया है, अमीर खुसरो ने बादशाह की मद्दाह में कसीदे लिखे। मद्दाह मतलब तारीफ और तौसीफ आता है, तो यहाँ पर इसमें जवाब है दूसरा सही, तारीफ और तौसीफ। उसके बाद पांचवा, मुबारक शाह खिलजी की फरमाइश पर यह मसनवी लिखी गई है। मुबारक शाह खिलजी की फरमाइश पर क्या है, यहाँ पर सह नह पहर मसनवी लिखी गई है। और छठा सवाल, अमीर खुसरो शायरी के अलावा फन मौसीकी के माहिर थे। मंदिर जबाला जुमले में माहिर का माना है महारत रखने वाला, क्या, महारत रखने वाला। और उसके बाद सातवां सवाल, सहरा सर होना एक मुहावरा है। सहरा सर होना एक मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है काम का दारोमदार होना है, नहीं पूरी वो काम की जिम्मेदारी उनके सर है। सहरा सर होना मतलब काम का दारोमदार होना। आठवां सवाल, शिकस्त का जिद फतह, यहाँ पर देखो फतह। और फन मौसीकी में माहिर उस्ताद को दिए जाने वाला लकब। फन मौसीकी में माहिर उस्ताद को दिए जाने वाला लकब, लकब कौन सा दिया जाता है उस्ताद को, यहाँ पर ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनके नाम सुने हैं, लेकिन नायक का नाम तो नहीं सुना। उस इक्तिबास में लिखा गया है कि नायक, माहिर उस्ताद को दिए जाने वाला लकब क्या है, नायक। क्या है भाई, नायक है। और उसके बाद चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर एक इक्तिबास नज़म की शक्ल में दी गई है, किसकी शक्ल में, नज़म की शक्ल में। तो इस नज़म को पढ़ने से पहले हम क्या है इन सवालात को पढ़ेंगे। अहकाम का वाहिद क्या है, तेरे अदल में हमको नजर आता है फतूर, मंदिर जबाला मिस्र में तेरे अदल से मुराद चादरें यहाँ तकसीम हो रही थी, मसावात से मुराद हुर्फ की दो किस्में, यहाँ मसावात से मुराद सिर्फ इतने ही। 13 सवालात क्या है, ये 3 सवालात इस इक्तिबास से मुताल्लिक हैं, इस इक्तिबास से मुताल्लिक है। तो चलो एक एक करके देखें। तो सबसे पहले हमको क्या है, इस नज़म को पढ़ना है, इस नज़म को पढ़ना है। देखो, एक दिन हजरत फारूक ने मेंबर पे कहा,
ایک فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. میں تمہیں حکم اگر دوں تو کرو گے منظور. میں تمہیں حکم دوں تو کرو گے اگر منظور. یہاں حکم دیکھو احکام کا واحد ہے. ایک نے اٹھ کے کہا کہ یہ کہ نہیں مانیں گے ضرور کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور. تیرے عدل میں مطلب یہ تیرے مطلب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. چادر مال غنیمت میں آپ کی آئیں صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئیں سب کے حضور. صحن مسجد میں تقسیم ہوئی. ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی تھا تمہارا بھی وہی حق کہ یہی ہے دستور. اپنے فرزند سے فاروق معظم نے کہا تم کو ہے حالت اصلی کی حقیقت پہ عبور. تم ہی دے سکتے ہو اس کا میری جانب سے جواب کہ نہ پکڑے مجھے محشر میں میرا رب غفور. اپنے حصے کی بھی میں نے نہیں انہیں چادر دے دی. واقعے کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور. اس طرح سے کیا ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. اس واقعے کو نظم کی شکل میں یہاں پر پیش کیا گیا ہے نظم کی شکل میں. تو اس کو ہم کیا ہے دیکھیں اس کے سوالات کو حل کریں. یعنی اس کے سوالات کو حل کرنے سے پہلے ہم کیا کرنا ہے اس کے سوالات کو حل کرنے سے پہلے ہمیں اس کو پڑھنا ہے. تو پہلا سوال یہاں پر کیا ہے 10واں سوال ہم پڑھ رہے ہیں. تو دیکھو 10واں سوال کیا ہے. احکام کا واحد حکم. احکام کا واحد کیا ہے حکم ہے. حاکم کیا ہے حاکم. احکام احکامات. احکام کا واحد احکام ہے. حکام حکم. یہ حکام واحد ہے حکم جمع ہے. اس طرح سے احکام کا واحد حکم ہے. 11واں سوال تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور. منزل سے بالا مصرے میں تیرے عدل سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ہے. اور 12واں سوال چادریں یہاں تقسیم ہوئی تھی کہاں پر صحن مسجد میں. اور 13واں سوال مساوات سے کیا مراد ہے. مساوات سے مراد ہے برابری. سب کے برابر. یہاں پر دیکھیے گا برابر لفظوں کا. چادریں مال غنیمت میں جو آپ کے آئیں صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئے. ہاں تو برابر ہر ایک کے حصے میں فقط ایک ہے. برابر تقسیم ہو رہی تھی. جواب ہے اس کا برابر. برابر. یہاں پہ کیا ہے گرامر کے متعلق سوالات ہیں. اب تک 2 اقتباسات ہوئے 1 سے 13 تک. 14واں سوال ہے گرامر. حرف کی 2 قسمیں. حرف کی 2 قسمیں یہ ہیں حرف سادہ حرف مخلوط حرف یا حرف علت حرف صحیح یا حرف فجائیہ حرف عطف یا حرف بیانیہ اور حرف انشائیہ. یہاں پر دیکھیے گا یہ حرف علت اور حرف صحیح دونوں سادہ حرف میں آتے ہیں. یہ حرف فجائیہ حرف عطف حرف بیانیہ حرف انشائیہ یہ تمام دیگر حرفوں کی قسمیں ہیں. 2 قسمیں کیا ہے یہاں پر سادہ حرف اور مخلوط حرف ہیں. اس کے بعد 15واں سوال شعر کے ارکان کی تکرار سے جب کوئی خاص وزن پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اوزان. خاص وزن اوزان کہتے ہیں. خاص وزن کو اوزان کہتے ہیں. وزن پیدا ہونا اوزان. 16واں سوال الفاظ کا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں پوری بات سمجھ میں آ جائے جملہ.
अल्फाज का मजमा, आसानी से, ये तो जवाब पूरा इजी है। जुमला है, पूरी बात समझ में। और नेक्स्ट, किसी वाक्य कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाला जुमला है खबरिया आता है। खबर देने वाला क्या है? जुमला है खबरिया है। मुल्क और मलक, सॉरी, मुल्क और मलक, ये मुल्क इसको पेश है और इसको क्या है? जबर है। पहले वाले हिस्से को यहाँ पर पेश है मीम के ऊपर और यहाँ पर मीम पर क्या है? जबर है। इनका मानवी फर्क को बताना है। तो मुल्क यानी देश, मुल्क यानी फरिश्ता नहीं होता, मलक फरिश्ता होता है, लेकिन ये मुल्क हुआ तो ये खूबसूरत नहीं होता। मुल्क देश है, मलिका मलक नहीं होता। मलिका यानी रानी, हाँ, मलक यानी मलकुल मौत, जिस तरह से हम कहते हैं मलकुल मौत एक फरिश्ता है, क्योंकि मलक यानी फरिश्ता। तो इस लिहाज से मुल्क मलक इनका मानवी फर्क है, देश और फरिश्ता। 19वां सवाल, हम आवाज अल्फाज के माने पहचान कर लिखिए। हम आवाज, यहाँ पर आला एक लफ्ज है और आला एक लफ्ज है। आला का माने औजार है, तो आला का माना क्या है? बहुत पस्त, कीमती, बहुत कीमती, बहुत कामयाब नहीं। यहाँ पर क्या जवाब? बहुत बुलंद। आला मतलब बहुत बुलंद। 20वां सवाल, इन जुमले इंशाइया में इस्तेफहाम की मिसाल दीजिए। इस्तेफहाम, इस्तेफहाम का मतलब है सवाल पूछना, सवालिया निशान। इस्तेफहामिया निशान मतलब सवालिया। तो इन जुमलों में सवालिया निशान, सवालिया जुमला कौन सा है? वाह क्या खूबसूरत मंजर है, ये तो सवाल नहीं है। अरे खुदा हमें माफ फरमा, ये भी नहीं है। काश ये सवारी मेरी होती, ये भी जुमला नहीं है, इस्तेफहामिया जुमला नहीं है। यहाँ पर क्या है? इस्तेफहामिया जुमला है ये किसकी किताब है? ये किसकी किताब है? उसके बाद हम ये देखें कि ये बाकी के जुमले कौन से हैं। ये बाकी के जुमले कौन से हैं? यहाँ पर एक मिनट, बाकी के जुमले यहाँ पर क्या है? पहला, वाह क्या खूबसूरत मंजर है, वाह क्या खूबसूरत मंजर है। वाह क्या खूबसूरत मंजर है, यहाँ पर जुमला तारीफिया है। पहला जुमला, वाह क्या खूबसूरत मंजर है, जुमला तारीफिया है। और उसके बाद, अय खुदा हमें माफ फरमाइएगा, माफ फरमाइएगा। क्या अल्लाह, ये क्या हुआ? ताज्जुब, इस्तेफहाम। तो यहाँ पर क्या है? अय खुदा हमें माफ कीजिएगा। अफसोस, यहाँ पर क्या है? वाल्ला मैंने कसम, कसम नहीं, दुआ की जा रही है। और इसके बाद, काश ये जुमला देखो चौथा, काश ये सवारी मेरी होती, काश ये सवारी मेरी होती, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब होते। काश यहाँ पर क्या है? शर्तिया है जुमला, ठीक है, शर्तिया जुमला है। ये तारीफिया जुमला है। और ये क्या है? ये दुआइया जुमला है, दुआइया। यहाँ तो खबर उसका जिक्र नहीं है, ये दुआइया जुमला। इस तरह से चारों जुमले हैं। और 21वां सवाल, बच बच हुस्न तअय्युन से जाहिर हो के बातिन हो, ये कैद नजर की है, वो कुफ्र का नदान जिंदा है। यहाँ पर देखो, मंदिर बाला शेर में ये मुतजाद अल्फाज है। मुतजाद मतलब अजदाद कौन से हैं? अब यहाँ पर देखिए, कैद नजर नहीं हो सकते, बातिन जिंदान, बातिन मतलब अंदरूनी, जिंदान मतलब जेल, जिंदान का मतलब जेल है। लेकिन यहाँ पर है हुस्ने फिक्र, हुस्न यानी खूबसूरती, फिक्र यानी सोच,
ये भी नहीं हो सकता। चौथा सवाल है ज़ाहिर व बातिन, ज़ाहिर मतलब बाहर का, बातिन मतलब अंदर का, तो इस लिहाज से चौथा जवाब सही है। यहाँ पर देखिए ज़ाहिर भी है बातिन भी है, ये दोनों अजदाद हैं, ये दोनों अजदाद हैं। जिंदान का मतलब है जेल, तो इस तरह से जवाब 21वां जवाब। और 22वां जवाब देखिए, किस शेर में एक ही लफ्ज की बार बार दोहराया जाता है, एक ही लफ्ज को बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराना वो तकरार कहलाता है। इस लिहाज से यहाँ पर क्या है, ये सनत तकरार आता है, ये क्या है, सनत तकरार, माफ कीजिएगा, सनत तकरार आता है, बार बार दोहराना। तो इस लिहाज से सनत तलमी क्या है, सनत तलमी, तलमी से मुराद शेर या कलमे, सनत तलमी का मतलब देखो, तलमी से मुराद शेर या कलाम में किसी मशहूर वाक्य या किसी मशहूर शख्सियत का जिक्र बतौर मिसाल पेश किया जाए, उसे क्या है, तलमी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर क्या है, शह की मिट्टी में फुतूहात सिकंदर देखे, यहाँ पर। और सनत इश्तियार में, इश्तियार के माने मांग लेना या कोई चीज किसी से उधार लेना, उधार लेना है, मांग लेना या कोई चीज किसी से उधार लेना है। जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने में इस्तेमाल हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। सनत इस्तिआरा मतलब उधार लेना। मिसाल के तौर पर क्या है, अपने सीने को राजदां, अपने सीने को राजों का मदफन बनाना, राजों का मदफन बनाना। सनत किनाया, सनत किनाया, इसका तो जिक्र नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह इसको बाद में बताऊंगा सनत किनाया क्या है। और उसके बाद इसको क्या है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा। 23वां सवाल, हजरत इमाम हुसैन इनके अजीज़ों और रफ़ीकों की शहादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं, शहादत के वाक़यात, रफ़ीकों की शहादत के वाक़यात को बयान किए जाते हैं, यानी शख्सी मरसिया, मरसिया में क्या है, वफात पाने वाले शख्स के वाक़यात को बयान किया जाता है, तो मरसिया में। तो यहाँ पर मरसियाओं के चंद अक़साम है। शख्सी मरसिया, कोई शख्स अगर वफात पाया तो उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। और शहदाए मरसिया, शहीद होने वालों के मरसियाओं को शहदाए मरसिया कहते हैं। हुब्बुल वतन मरसिया, यानी वतन की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वालों को के वाक़यात को बयान करना, ये हुब्बुल वतनी मरसिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पर करबलाई मरसिया, करबला जो आपको मालूम है, करबला का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत थी, तो उनके वाक़यात को बयान करने वाला, बयान करने को क्या कहते हैं, करबलाई मरसिया कहा जाता है। उनके वाक़यात को बयान करने वाली नज़म करबलाई मरसिया कहलाती है। उसके बाद 24वां सवाल, वो मंजूम कलाम जिसका हर शेर माने वो मफहूम के लिहाज से मुकम्मल होता है, माने और मफहूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर क्या है, रुबाई इसका जवाब है, क्योंकि यहाँ रुबाई की तारीफ कुछ इस तरह से है, शायर को सिर्फ 4 मिसरे में अपना मतलब अदा करना होता है, 4 ही मिसरे में, इस लिहाज से मानी व मफहूम के लिहाज से मुकम्मल होता है, मानी व मफहूम के लिहाज से। ये क्या है, रुबाई इसका जवाब है। कसीदा, नात, गजल वो तो आपको पता है। 25वां सवाल, रुबाई का ये मिसरा हासिल कलाम होता है, हासिल कलाम, रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है, क्योंकि आखिरी मिसरे में शायर क्या है, अपने तमाम पूरा मजमून का मकसद, शेर का मकसद वहां पर बयान करता है। 26वां सवाल, समाती सरगर्मी, यहाँ पर 26 से क्या है, पेडागोजी के सवाल आते हैं। कौन से हैं, पेडागोजी, तरीका तदरीस, ये सवाल आते हैं। 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 4 सवाल पेडागोजी के हैं यहाँ पर। देखो, समाती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में कुल 3 मराहिल हैं, इनमें से एक मरहला शामिल नहीं है। तो 4 मरहले दिए गए हैं, इसमें से एक मरहला शामिल नहीं है। इसमें से देखो, कबल तैयारी, दौरान समात, बाद समात सरगर्मियाँ, तो इसलिए ऐसे क्या है, ये जवाब
सही हो सकते हैं इसमें। समाज की हुई बातों को हूबहू दोहराना, यहाँ पर क्या है, यहाँ बाद सरगर्मी में ये जुमला आ सकता है, इसलिए ऐसे ये क्या है, मुनासिब नहीं है। तो ये जवाब सही है। 27वां सवाल, मौजूदा दौर में कदर पेमाई वाला मंसूबाए दरस इस्तेमाल किया जाता है। 4, 6, 3, 5, तो इसलिए ऐसे क्या है, 5वां 5E लेसन प्लान बोलते नाम। 5E लेसन प्लान शायद आपके बीएड के स्टूडेंट्स को पता होगा। 5E लेसन प्लान हमारे दौर में तो ये नहीं था, तो अब क्या है, ये 5E लेसन प्लान आ गया है। तो मौजूदा दौर का पूछ रहा है, तो मौजूदा दौर में क्या है, 5E 5E मंसूबाए दरस है। उसके बाद 28वां सवाल, किस्सा गोई इस महारत या सलाहियत को फरोग देता है। किस्सा गोई कौन सी सलाहियत को फरोग देता है? किस्सा बोलने से कौन सी सलाहियत बढ़ती है? बोलने की सलाहियत बढ़ती है। यहाँ पर क्या है, बोलना। गोया ये मतलब बोलना, तो बोलने की सलाहियत तलबा में परवान चढ़ती है। समात मतलब सुनना, लिखना, पढ़ना, आपको तो पता है। 29वां सवाल, मुसलसल साल भर होती रहने वाली कदर पेमाई। साल भर होती रहने वाली कदर पेमाई कौन सी? तकर्रुरी ये तो नवे, तशखीशी ये भी नवे, तजमी मतलब आखिरी में आने वाली, ये तश्कीली FA बोलते नाम, FA ये मुसलसल चलते रहती है। FA 1 2 3 4 चार तरीके के FAs हैं यहाँ पर, तो इसलिए ऐसे ये तश्कीली कदर पेमाई है इसका जवाब। उसके बाद यहाँ पर तजमी कदर पेमाई मतलब ऐसे, यानी ये साल के इम्तिहान में या सेमिस्टर वाइज चलाई जाने वाली इम्तिहान है, ये क्या है, तजमी कदर पेमाई कहलाती है। उसके बाद आखिरी सवाल इसका, आज़ादी की जिद्दोजहद में जवाहरलाल नेहरू के किरदार पर रोशनी डालिए। ये सवाल मंदिर झील की एक किस्म है। यहाँ पर क्या है, रोशनी डालना है, हमें क्या डालना है, रोशनी। ये एक जुमले में लिखने का सवाल तो नहीं है, 2 जुमले में भी नहीं लिख सकते, इसको लिखना मुश्किल तो नहीं है, तो इसलिए ऐसे क्या है, ये तफसीली सवाल है, 3 या 4 मार्क्स का सवाल है, तफसीली, बच्चे वजाहत करके बयान करना है। ये रहा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू के 30 सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड लैंग्वेज, इसको भी एक नज़र दोहराएं, क्योंकि चंद मर्तबा क्या है, यहाँ के सवालात उठाकर वहाँ डालते हैं, वहाँ के यहाँ डालते हैं, इसलिए ऐसे इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से मैं डायरेक्ट इन सवालात को हल करने की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सवाल ये है क्या, इक्तिबास। इस इक्तिबास में क्या है, दरबार शाही में महमूद गजनवी का एक वाकया है, जो हीरे की कीमत की पहचान के लिए, ये वाकया पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे सीधे क्या है, सवालात की तरफ जाता हूँ। तो 31वां सवाल, बादशाह ने हीरे की कीमत का अंदाजा ये लगाया, क्या लगाया, बादशाह ने हीरे की कीमत का 1 मन सोने के बराबर, क्योंकि वजीर ने कहा इसकी कीमत 1 मन सोने के बराबर हो सकती है, एक हीरे की कीमत, एक हीरा बताने के बाद। तो नेक्स्ट सवाल, दरबार के माल व मनाल का निगरान और खैरख्वाह कौन है? दरबार के माल व मनाल का निगरान का खैरख्वाह वजीर है। आप वहां पर देखकर टिक्की कर लीजिएगा। मुहाल यहाँ पर पेश आता है, याद रखिएगा, पेश क्या आता है, पेश आता है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर पेश आता है। और एक आता है मुहाल, और यहाँ पर क्या है, पेश आता है, मुहाल। इसका मतलब क्या है, मुहाल का मतलब है मुश्किल। और एक महाल, जबर आता है,
महल की जमा महाल, महल महाल, महल की जमा महाल आता है, ये मुहाल है, पेश है, मुहाल। उसके बाद 34वां सवाल, जाहिर का जिद क्या है? बातिन। यहाँ पर देखो, जाहिर का जिद बातिन, वहां पर हमने पढ़ा था जाहिर और बातिन। नेक्स्ट सवाल 30वां, वो रूह नापाक है जो एक हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमाने शाही को नजरअंदाज कर दे। ये जुमला इस वाक्य में किसने कहा? ये जुमला इस वाक्य में क्या है? अयाज ने कहा, क्योंकि उसने हीरे को तोड़ दिया था। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर एक नज़म दी गई है, इस नज़म को पढ़ना है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, इस तरह से एक नज़म है, इस नज़म को पढ़ना है। इस नज़म को लिखने वाले शायर हैं गालिब, देख लीजिएगा, इस नज़म को लिखने वाले गालिब हैं। शायर क्या है? गालिब है, गालिब की नज़म है ये। तो चलो आगे सवाल देखेंगे। 36वां सवाल, क्या खजर ने सिकंदर से क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। मंदिर बाला शेर में इस्तेमाल की गई सनद, मैं अभी भी आपको बताया था, तलमी क्या है, तजाद क्या है, इस्तियारा क्या है, तशबिया क्या है? तो उसको याद कर लीजिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मशहूर शख्स हजरत सिकंदर अलैहिस्सलाम, हजरत खजर ने सिकंदर से कहा, खजर अलैहिस्सलाम के मुताबिक बताया, मशहूर शख्स खजर के मुताबिक बताया गया, खजर अलैहिस्सलाम के मुताबिक। तो इस लिहाज से ये क्या है? सनद तलमी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, सनद तलमी हुआ। इसके बाद इब्ने मरियम से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद इस गजल के शायर कौन है? गालिब है, मैंने आपको बताया था। बख्श दो अगर गलत चले या करे कोई, इस मिसरे में ये नसीहत की गई है, क्या? गलती माफ ना करो, गलत मोहब्बत ना करो, गलत चलना गुनाह है, गलत नहीं। यहाँ पर जवाब, सही जवाब क्या है? गलती को माफ कर दो, गलती को माफ कर दो। 40वां सवाल है, हाजतों को पूरा करने वाला, हाजतों को कौन पूरा करता है? हाजतमंद, मांगने वाला, मजबूर तो नहीं करता, हाजत रवा नहीं, मुख्तार जिसके पास इख्तियार है, हाजतों को कौन पूरा करता है? अल्लाह ताला। तो इसलिए से अल्लाह ताला का क्या है? मुख्तार है, जवाब क्या है? मुख्तार इसका। नेक्स्ट सवाल, दर्ज झील मिसरों में मक्ते की निशानदेही कीजिए। मक्ता किसको कहा जाता है? मक्ता उसको कहा जाता है, मक्ता की तारीफ क्या है? मक्ता की तारीफ कुछ इस तरह से है। गजल के आखिरी शेर शायर उम्मन अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ये वो शेर क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। उस लिहाज से यहाँ पर मक्ता क्या है? जब तवक्का ही उठ गई गालिब, यहाँ पर जवाब है, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, ये तवक्का है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर क्या है? ग्रामर शुरू है, ग्रामर। तो चलो, वो जुमले जिसमें कहने वाले के ख्वाहिश, ख्यालात या जज्बे का जिक्र हो, ये क्या है? जुमलाए इंशाइया कहलाता है। काम के मुतल्लिक हो तो फेलिया, खबर के मुतल्लिक हो तो खबरिया, और किसी का नाम जाहिर किया जाता है तो वो इस्मिया कहलाता है। तो इसमें सही जवाब होगा जुमलाए इंशाइया। नेक्स्ट है, सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में। सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में, सूरत के लिहाज से क्या है? मुफर्रद और मुरक्कब, ये जवाब सही है। सूरत के लिहाज से क्या है? मुफर्रद जुमला और मुरक्कब जुमला है। उसके बाद
44 सवाल, वो इसम खास है जो सरकार या दरबार की तरफ से किसी खिदमत के सिले में दिया जाता है। किसी खिदमत के सिले में दिया जाने वाला इसमें खास क्या है? खताब है सरकार की जानिब से। लक़ब क्या है? उनकी सलाहियत। यहाँ पर तखल्लुस, तखल्लुस क्या है? उनके तखल्लुस, शायर खुद अपना तखल्लुस रखता है जो अशार में इस्तेमाल करने के लिए मखसूस नाम, छोटा सा नाम इस्तेमाल करने के लिए क्या शायर है? तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। इसका नाम वो मुख्तसर नाम है जो शायर और अदीब नज़मों या गज़लों में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। लक़ब यानी किसी शख्स की खूबी या वस्फ की वजह से जो नाम दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है उसे लक़ब कहते हैं। और उर्फ क्या है? असली नाम के बजाय से हटकर प्यारे नाम से या नफरत से पुकारे जाने वाले मुख्तसर नाम को उर्फ कहते हैं, जैसे विक्की, मिन्नी, मुन्नू, चुन्नू, अशू, धर्रू वगैरह। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सरकार की जानिब से, सरकार या दरबार की तरफ से किसी खिदमत के सिले में दिया जाने वाला इसमें ख़ास खताब है। उसके बाद कलमा, वो कलमा है जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, वो है ज़मीर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, मंद जजील साबिका की निशानदेही कीजिए। मंद जजील में साबिका कौन सा है? कलमदान, दान क्या है? यहाँ पर लाहिका है। मददगार, गार लाहिका है। दौलत कदा, कदा यहाँ पर लाहिका है। वो क्या कर रहा है? साबिका पूछ रहा है। साबिका, साबिका क्या है? यहाँ पर बे है। साबिका मतलब पहला आने वाला, लाहिका मतलब लास्ट में आने वाला, साबिका मतलब पहले आने वाला। तो इस लिहाज से यहाँ पर सही जवाब होगा बेबाक। ये जवाब सही है, चौथा जवाब। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, खालिद ने रुई खाई। खालिद ने रुई खाई, यहाँ पर क्या है? रुई खाना। खालिद ने रुई खाई। उर्दू जबान के मुअल्लिम इस मिसाल में ने का इस्तेमाल इसकी तदरीस में करेंगे। ने क्या है? खालिद ने क्या की? खाई। क्या खाई? रुई खाई। तो इसका मतलब क्या है? ये अलामत फेली है, अलामत फेली। ज्यादातर ने का इस्तेमाल अलामत फेली के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला सवाल, रुबाई का ये मिसरा रदीफ और काफिये का पाबंद नहीं होता। रदीफ और काफिये का पाबंद ना होने वाला मिसरा क्या है? तीसरा मिसरा है रुबाई का। नेक्स्ट सवाल, इनमें पैदाइशी सलाहियत, पैदाइशी सलाहियत कौन सी है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले ही होती है सलाहियत। वो सलाहियत कौन सी है? वो सलाहियत है सुनना। वो सलाहियत है सुनना, सुनना है। और अगला सवाल, वाहिद जमा की एक जोड़ी गलत है। वाहिद जमा की एक ही जोड़ी गलत है, बाकी के सही है। हुक्म की जमा अहकाम सही है। वक्त की जमा औकात सही है। और कौम की जमा अक़वाम, ये भी जवाब सही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या है? मुकाम और मुकामी, ये जवाब गलत है। मुकाम और मुकामी। उसके बाद अगला सवाल, जील के अल्फाज में शम्स का गैर मुतरादिफ, शम्स का गैर मुतरादिफ, मुतरादिफ मतलब हम माना, गैर मुतरादिफ मतलब यहाँ पर जिद तलाश करना है। क्या? जिद। शम्स का जिद, शम्स मतलब सूरज, तो सूरज तो यहाँ नहीं होता। खुर्शीद शम्स को ही कहा जाता है। आफताब शम्स को ही कहा जाता है। कमर, ये क्या है? सही जवाब कमर है। कमर क्या है? उसका जिद है, गैर मुतरादिफ है। नेक्स्ट सवाल, जम्मा पेश को कहते हैं, पेश वाले हुर्फ को मजमूम कहते हैं। याद रखिए, मजमूम, जम्मा है नहीं, मजमूम कहते हैं। कसर वाले हुर्फ को मकसूम कहते हैं। याद रखो, ये मकसूम कसर, ये मकसूम कसर वाला, ये मजमूम पेश वाला।
ये मजमूम पेश वाला। और इसी तरह मजमूम मजमूम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मकसूम और मजमूम ये गलत हैं। ये मजमूम जम्मा वाले हुर्फ को कहते हैं, मकसूर कसर वाले हुर्फ को कहते हैं, याद रखो। नेक्स्ट अगला सवाल, नज़म जिसके हर मिसरे में अरकान घटते बढ़ते रहते हैं, घटते और बढ़ते रहने वाली नज़म कौन सी है? यहाँ पर आज़ाद नज़म है, जो आज़ाद होती है, जब चाहे बढ़े जब चाहे घटे, इसमें कोई भी क्या है पाबंदी नहीं होती मिसरों की, अरकान की। अगला सवाल, गैर मुतल्लिक लफ्ज़, गैर मुतल्लिक लफ्ज़ गुलशन, चमन, गुलजार, ये तीनों अल्फाज ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर खार क्या है? गैर मुतल्लिक लफ्ज़ है। अगला सवाल, तहजीब और फिक्र के दरमियान एक राबिता पैदा करती है। तहजीब और फिक्र ये क्या है? माहौल, मदरसा, खानदान तो नहीं है। जुबान एक ऐसा आला है जो तहजीब और फिक्र के दोनों के दरमियान राबिता पैदा करती है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट सवाल 5E का, वहां पर भी 5E का सवाल था, यहाँ पर भी 5E का सवाल है। क्या है देखो 5E में 5E आमुजिशी तरीक़ेकार का दूसरा मरहला, दूसरा मरहला कौन सा है? यहाँ पर देखिए शमूलियत है, वजाहत है, तहकीक है, तौसी है। 5 मरहले हैं लेकिन 4 का नाम दिया गया। यहाँ पर शमूलियत क्या करता है? ये पहला मरहला है, और तहकीक है दूसरा मरहला, और वजाहत है तीसरा मरहला, और तौसीह है चौथा मरहला। 5वां मरहला है कदर पेमाई, कदर पेमाई, 5वां मरहला है कदर पेमाई। तो ये 5 मरहले हैं इसके। तो सवाल क्या है? दूसरा मरहला पूछ रहा है। दूसरा मरहला है तहकीक, दूसरा मरहला है तहकीक। अब नेक्स्ट सवाल, मौजूदा दरसी निसाब इसके मुताबिक है। मौजूदा मतलब फिलवक्त, कौमी निसाब चौकट्ठा 2005, कौमी निसाब चौकट्ठा 1986, कौमी निसाब चौकट्ठा 2000, कौमी निसाब चौकट्ठा 2020। तो NEP जो है फिलवक्त क्या है? 2020 का है। NEP 2020 के तहत क्या है? मौजूदा दरसी निसाब की तैयारी की जा रही है। शायद चंद महीने पहले आप सुने होंगे कि समाजी साइंस की मवाद की तब्दीली के दौरान चंद मसले मसाइल आए थे, न्यूज़ में सुना होगा। इसको निकाला जा रहा है, इसको शामिल किया जा रहा है करके, वो है NEP 2020 का इसका जवाब सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, समाती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में कुल 3 मराइल हैं, तो इनमें से एक शामिल नहीं है। तो वहां पर भी यही सवाल था, यहाँ पर भी वही सवाल है, दोबारा दोहराया गया है। कब्ल अज़ तैयारी, बाद अज़ तैयारी, बाद अज़ तदरीस, दौरान समात, और बाद अज़ समाती सरगर्मियाँ। यहाँ क्या है? समाती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में कुल 3 मराइल हैं, तो इसमें क्या है? समाती सरगर्मियाँ। तो ये क्या है? सही जवाब ये है, ये शामिल नहीं है इसमें। समाती सरगर्मी में वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, पढ़ने की सलाहियत के फ़रोग़ का पहला मरहला, पढ़ने की सलाहियत के फ़रोग़ का पहला मरहला। तो पहला मरहला क्या है? खामोशी से पढ़ना तो नहीं होता, ग्रोही मुतालिया भी नहीं हो सकता, धीमी आवाज़ से पढ़ना भी नहीं। पहले जैसे ही बच्चे पहली क्लास को आए या शुरू में आए, तो सबसे पहले हमें उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ना या बुलंद ख़्वानी करने के लिए कहें, क्योंकि बुलंद ख़्वानी करने से वो बच्चा जो पढ़ रहा है उसका तलफ़्फ़ुज़ हमें पता चलता है कि वो सही पढ़ रहा है नहीं।
تو پہلا مرحلہ ہے بلند خوانی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ کیا ہے دوسرا مرحلہ، کیا ہے دھیمی آواز سے پڑھنا، سلولی زیر لب پڑھنا، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے خاموشی سے پڑھنا، خاموش خوانی، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور یہ گروہی سطح مطالعہ یہ تو بعد کی بات ہے، اہم 3 مرحلے ہیں اس میں، یہ بعد کی بات ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے بلند خوانی۔ نیکسٹ آخری سوال، سماعتی تربیت کی ایک اہم ٹیکنیک، سماعتی سرگرمی یعنی سننے کی سرگرمی، سننے کی صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کوئی بولتا ہے، بولنے کے لیے کیا ہے الفاظ کا طریقہ، لفظوں کا کھیل، سنتا نہیں، الفاظ کا طریقہ مطلب وہاں پر کیا الفاظ کے طریقے تلاش کرتے ہیں، لفظوں کا کھیل کھیلتا ہے، مضمون نویسی لکھتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھو قصہ گوئی، تو یہ جواب اس کا صحیح ہے، قصہ گوئی سماعتی سرگرمیوں کی ایک بہترین یا اہم ٹیکنیک ہے۔ یہ رہا پیپر 2 کے فرسٹ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج کے سوالی پرچے کا حل۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسی طرح بیل آئیکن کو دبائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مزید نوٹس کے لیے فری میں اگر نوٹس چاہتے ہوں تو ہمارے ٹیلی گرام گروپ اور فیس بک گروپ میں شامل ہو جائیے گا، یہ ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت، اس طرح کی مزید خدمت لے، تو آپ بھی دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔